Hello, everyone, and welcome to our crash course on Indian polity for UPSC 2025. So, in this video, we are going to dial on the very soul and very heart of the Indian Constitution, the preamble to the Constitution of India. Okay, so for those of you who have until now somehow still not touched this concept of preamble, let's quickly brush it. And आप में से जिन लोगों ने कर लिया, we'll probably do a quick revision for them, right? So, what exactly is a preamble? Okay, you can see on the slide behind me, there is an entire text being shown, which we commonly call as the preamble. Okay, so what exactly does it mean? Simply stated, preamble का मतलब होता है an introduction to the constitution. I remember there is one famous political thinker, I think Mr. N. Palkiwala, who says that it is a ID card to the constitution. ठीक है, बट अगर हम इसको ले टर्म्स में बोलें, इट इज अ डॉक्यूमेंट और रादर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स or which elaborates or talks about the various ideals, aims and aspirations which the founding fathers aims to achieve and which they wanted our constitutional document to incorporate. Okay, so preamble invariably is a very relevant thing when it comes to constitution, and it is also a very significant thing when it comes to your prelims का exam. Why is it important? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मेरे, अगर आप स्लाइड देख रहे हैं तो इसमें बैकग्राउंड में कैपिटलाइज किए हुए वर्ड्स हैं. दे आर एसेंशियली दोज फ्रेजेस जिससे जनरली कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन भिड़ ही जाता है. यूजुअली एवरी सेकेंड ईयर यू कैन सी क्वेश्चन कमिंग आउट और पॉपिंग आउट फ्रॉम द प्रीएम्बल. एंड एसेंशियली या तो ये होगा कि यू कैन गेट सम क्वेश्चन विच इज गोइंग टू आस्क यू टू इलेबोरेट अपॉन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज, or it can be some seriously simply factual question which talks about or deals with some provision of the preamble, right? So let's go and look at these phrases in detail. पूरा preamble याद रखने का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, हमको सिर्फ उसकी जो की phrases हैं उस पे फोकस करना है, and we have to understand their relevance. Okay, so let's see. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक फ्रेज इंपॉर्टेंट है. अब इसी से कनेक्टेड एक और फ्रेज है, अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, 26 नवंबर 1949, ये इंपॉर्टेंट है. सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है. जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी इन फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट है. अब इस पूरे कंसेप्ट को और अदर ये पूरे सेट को अगर हम एक साथ पढ़ें तो इसे निकल के क्या आता है. देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व्ड प्लस लास्ट में जो लिखा है अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एसेंशियली इंप्लाइज दैट द सोवर्निटी, द रियल सोवर्निटी और इवेंचुअल सोवर्निटी इन केस ऑफ इंडिया रेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया. People of India are the real actual sovereign. The sovereignty which we say, जब हम बोलते हैं कि Constitution of India is supreme, तो essentially जिस sovereignty की बात हो रही है ना, वो sovereignty है कि sovereignty of the people which they have delegated to the Constitution of India. ठीक है. Then another thing that we need to remember is 26 नवंबर 1949. बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डेट है ये. बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, कब साइन हुआ था, या फिर घुमा के पूछ लिया जाता है इस डेट की रेलिवेंस. ठीक है, दिस इज द डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज signed by the members of the Constituent Assembly, and this is the date when the Constitution is said to be formed. ठीक है. उसके अलावा the other phrases, they can be divided into 5 adjectives or 5 adjectives rather: sovereign, socialist, secular, democratic, republic. ये जो 5 adjective हैं, they express or they describe the kind of polity which the Indian Constitution aims to achieve or establish. ठीक है. साथ में ही ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 आइडियल्स हैं, ये 4 एस्पिरेशंस हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है कि हमारा जो नेशनल सेटअप है उसमें ये 4 आइडियल्स थरोली एस्टैब्लिश होने चाहिए. इसके रिस्पेक्ट में फिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के प्रोविजंस पढ़ते हैं, वी सी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एस्टैब्लिश दीज आइडियल्स. ठीक है ना. सो लेट्स सी द फर्स्ट एडजेक्टिव, सोवरन. सिंपली स्टेटेड, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म, सोवरन का मतलब क्या है. ठीक है. पहली चीज तो हमको ये पकड़नी है कि सोवरन मीन्स दैट इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट बोथ इन इट्स एक्सटर्नल
एंड इंटरनल स्फेयर्स। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फेयर्स में हमें कंप्लीट अथॉरिटी है कोई भी डिसीजन लेने की। वी आर वी आर द सुप्रीम पावर टू मेक आवर ओन डिसीजंस, देन वी आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर अथॉरिटी ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी अदर एक्सटर्नल एंटिटी। जैसे जब हम कॉलोनियल टाइम्स की बात करते हैं तो उसमें वर्ल्ड वॉर 1 है या वर्ल्ड वॉर 2 है, उसमें वेदर इंडिया शुड पार्टिसिपेट इन इट और वेदर इंडिया शुड नॉट पार्टिसिपेट इन टू इट, वी हैड जीरो से इन टू इट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर इंडिया विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द वर्ल्ड वॉर और नॉट। हमारा अपना कोई से ही नहीं था, हम चिल्ला के रह जाएंगे, आंदोलन करके रह जाएंगे, पर कोई हमारा से नहीं था ऑफिशियली। दिस इज नॉट द सिचुएशन आफ्टर द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर थरोली इंडिपेंडेंट एंड थरोली फ्री टू डिसाइड हाउ वी चूज टू डिसाइड। ओके, next is socialist. So in the context of Indian constitution, what exactly does socialism signifies? Socialism signifies a commitment to a social and economic equality which is aimed at eliminating exploitation and promoting a welfare state. Okay, it's not about state ownership of all property, but it is about creating a society where everyone has equal opportunities as well as equal access to the resources of the society. ठीक है ना, जो एक पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म है, इससे हम थोड़ा सा डिमार्केट कर जाते हैं खुद को। द काइंड ऑफ सोशलिज्म दैट वी पोजेस इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहां पे दो फीचर्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं। देर इज प्रेजेंस ऑफ द मार्केट ऑल्सो एंड देर इज प्रेजेंस ऑफ द स्टेट ऑल्सो इन सर्टन स्फेयर्स, एंड दोनों के अपने डिफाइंड एरियाज हैं, बट प्राइमरली मार्केट डोमिनेट करता है। एंड वी ट्राई टू इंश्योर दैट इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज to all the citizens of the nation, but through the aegis of market. ठीक है ना, something that is usually missing in the core concept of socialism, या फिर socialism को जब हम क्लासिक सेंस में बोलते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा आइडिया मिसिंग होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेक्युलर, सिंपली स्टेटेड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है ना, असेंशियली इसका मतलब क्या है? बेसिकली रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ओके, what it means is that state does not favor nor does it patronize any particular religion. ठीक है, उसके अलावा सेक्युलरिज्म जो होता है इट्स ऑफन बाइफरकेटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म। तो नेगेटिव जो सेक्युलरिज्म है, व्हाट इट एसेंशियली मीन्स इज दैट द स्टेट रिमेन्स कंप्लीटली अलूफ एंड सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं बचता है। ठीक है, on the other hand, secularism as used in the Indian context, it has a more of a positive connotation. इसमें positive connotation का मतलब क्या है? That while India does not have any particular officially defined religion of its own, but we give equal respect, equal dignity to all the religions. हम सारे religions सबकी equal respect करते हैं। ठीक है ना, all religions are treated equally, and at the same time the state will take equal efforts for the promotion and development of all religious groups, all religious sects of the country. And essentially इसका aim क्या है कि we want to promote social harmony, tolerance and respect and trust among the members of the society as well as amongst various religious groups. ठीक है, तो हमारा जो state होगा, it will try to work for the benefit of all denominations, all religious sects and all religious groups. Okay, next is democratic. So what exactly does the adjective democratic mean in Indian respect? Democratic under Indian preamble signifies a democratic policy, or rather a democratic polity, which is based on the deduction of popular sovereignty. ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी है उसके ऊपर बेस्ड एक पॉलिटी। बेसिकली व्हाट एसेंशियली इट मींस इज इन द गवर्नमेंट इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर ऑल इट्स एक्शंस। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट डिराइव्स ऑल इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। People are the real sovereign, as I said before also. और क्या कहते हैं, it essentially implies a system where the citizens have power to choose their leaders. Similarly, the executive is responsible to the legislature, or where there is commitment to the principles such as supremacy of law, free and fair elections, universal adult suffrage and so on. ठीक है ना, तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इफ आई एलॉबरेट ऑन इट अ लिटिल बिट, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? द पीपल हु आर कंसिडर्ड द रियल सोवरन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, दे हैव डेलीगेटेड देयर डिसीजन मेकिंग फंक्शंस टू सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स who they elect through periodical elections,
और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाकर हमारे बिहाफ पर लॉ मेकिंग करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज रिपब्लिक. सो व्हाट इज अ रिपब्लिक? A republic, in contrast to a monarchy, if we can say, it is a political system wherein the head of the state is elected and not hereditary. जो मोनार्कीज होती हैं या फिर किंग्स रूल होते थे पुराने टाइम पे, वहां पे जो किंग्स थे वो हेरिडिटरी होते थे. आफ्टर फादर इट विल बी द सन और द डॉटर, एज द केस मे बी, दे वुड गेट टू रूल. द रूल ऑफ अ सिंगल फैमिली विल परपेचुएट. This is not the case under the scheme given in the preamble to the Indian Constitution. Here what we happen to possess is that the head of the state is an elected one. He is elected whether directly or indirectly by the people of the nation and usually remains on his position for a fixed tenure. अब देखिए, जो रिपब्लिक के हेड्स होते हैं, there can be two type of things here. आपका जो हेड होगा, जो हमारे केस में प्रेसिडेंट हो गए, वो या तो डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन डायरेक्टली बाय द पीपल होता है. हमारे यहाँ पे क्या होता है, द पीपल ऑफ द कंट्री दे इलेक्ट एमपीज एंड एमएलएस, और ये एमपीज और एमएलएस आगे जाकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. सो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. द प्रेसिडेंट इज सेड टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया. Okay, and the president of India remains in his office until unless removed earlier, he remains in his office for a term of 5 years. Okay, so basically a fixed tenure at the same time election. These are the two chief characteristics of the concept of republic. Cool. Okay, with that let's see the goals of the preamble. ठीक है, सबसे पहले justice. Justice का मतलब क्या होता है? Justice simply stated means to give each and every person what they really deserve. Okay, under the preamble, justice signifies a framework of fairness, equality and equity. The justice envisaged by our preamble, it can broadly be, or it can rather be, differentiated into three primary types: social, economic and political, as it is given in the preamble. Now first, social justice. Social justice का क्या मतलब है? This aspect focuses on ensuring that the society is structured in such a way that it promotes equality, it promotes fairness for all, and it does so irrespective of their caste, irrespective of their creed, irrespective of their religion, gender and other social stratifications. ठीक है ना? सोशल बेसिस पे सबको एक समान वातावरण मिले. दिस इज what the social justice aims to achieve. Okay, then there is the economic justice. Economic justice on the other hand aims to reduce the economic inequalities. ठीक है, what it strives for is ensuring a fair distribution of the resources of the nation and at the same time a fair distribution of opportunities between the members of the society, so that we can somehow ensure an economic prosperity of all the sections of the society. Okay, and then finally we have political justice. Political justice क्या करता है? What political justice does is it guarantees to all citizens of the country equal political rights, equal political opportunities, and ensures that there is the participation by every citizen in the political processes as well as the governance of the country, and none of the Indian citizens are prevented from being politically involved because of any sort of discrimination. आप किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से हैं, आपको चुनाव लड़ने का, वोट देने का, किसी पोस्ट के लिए अपने आप को नॉमिनेट करने का बराबर अधिकार है. ठीक है ना? दिस इज व्हाट एसेंशियली दैट पॉलिटिकल जस्टिस एम्स टू अचीव. ओके, देन वी हैव लिबर्टी. लिबर्टी सिंपली स्टेटेड, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस which will allow them to act and develop their personalities to their fullest extent. ठीक है ना? And something which allows them to grow and develop without any sort of inhibitions or any sort of arbitrary constraints. ठीक है? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में there are five types of liberties that have been given. Liberty of thought, यानी आपको सोचने की एक आज़ादी दी हुई है. Liberty of express, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आपको एक लिबर्टी दी गई है. यू हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ और फेथ, आप किस चीज़ में बिलीव करना चाहते हैं, किसी रिलीजियस सेक्ट में, किसी रिलीजियस गुरु में आप बिलीव करना चाहते हैं, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर दैट. आप अपनी श्रद्धा किस में रखना चाहते हैं, व्हाट इज योर फेथ इनटू, आप कॉन्स्टिट्यूशन में श्रद्धा रख सकते हैं, आप किसी मंदिर में श्रद्धा कर सकते हैं, किसी आइडल में श्रद्धा रख सकते हैं, आप किसी
रिलीजियस बुक में श्रद्धा रख सकते हैं, यू हैव अ कंप्लीट फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू दैट। सिमिलरली वर्शिप, पूजा पाठ करने की, अपने जो भी रिलीजियस आइडियाज हैं उनको फॉलो करने की, अपनी कंसाइंस को फॉलो करने की, अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करने की आपको एक फ्रीडम दी गई है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट लिबर्टी एसेंशियली मीन्स। देन देयर इज इक्वालिटी। Equality means, simply stated, it will mean absence of any special privilege, okay, towards any section of the society. So we ensure that there is no special privilege given to any section of the society, as well as we are ensuring that equal opportunities are given to all the citizens without any sort of discrimination, ठीक है। what we are trying to say is कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे इफ यू गो टू द किंग्स टाइम या फिर पुराने कॉलोनियल टाइम्स हो गए, उससे पहले के टाइम हो गए, उसमें वी ऑलवेज यूज टू सी द नोबल क्लास या फिर people who belong to certain strata of the society, they enjoyed a certain, a certainly better position। भाई आपके जितने भी नोबल्स होते थे किंग्स के टाइम पे, दे यूज टू गेट इलेक्टेड मोस्टली हेरिडिटरी, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मंत्री का बेटा बहुत बार मंत्री ही बनता था, ऑल दीज थिंग्स यूज टू गो हेरिडिटरी। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू डिस्ट्रॉय। It wants to establish a polity wherein every member gets his opportunities on the basis of his merit. At the same time, it also ensures that no section, no part of the society is left out because of any hardships that they are facing. ठीक है, we want to ensure that every section of the society gets equal opportunities to move up the ladder. Okay, and then there we have fraternity. ये बहुत relevant है। Fraternity signifies a sense of brotherhood, भाईचारा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। It signifies a sense of brotherhood, a sense of unity and a sense of comity amongst all the citizens, ठीक है ना। What it essentially emphasizes upon is we foster a feeling of brotherhood, a feeling of mutual respect amongst all Indians, irrespective of or transcending the differences between them in respect of their geography, in respect of their social or cultural setups, in different respect of their languages, ठीक है, in respect of their historical context and all. And we do this with the aim to ensure that every citizen, irrespective of his caste and creed, of course, is treated with respect, he is treated with dignity, so that we can create a society where every single member of the society feels respected, feels safe, feel protected and feel valued। हर कोई मेंबर जो है वो वैल्यूड फील करता है, प्रोटेक्टेड फील करता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एंड एट द सेम टाइम द एम ऑफ दिस फ्रेटर्निटी इज टू इंश्योर दैट डिस्पाइट आवर डाइवर्स बैकग्राउंड्स, हमारे जो अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं उन सब के बावजूद द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस इज केप्ट इंटैक्ट। In fact, it's strengthened and it's maintained by fostering amongst all the citizens a sense of shared purpose, a sense of comity, a sense of brotherhood towards each other. Okay, so these adjectives and ideals, these two, ये जो phrases हैं, ये phrases आपको एकदम deeply remember रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि जब भी question आए you can क्विकली रिमेंबर के कौन सा फ्रेज था, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव्स हैं, इसको आपको याद रखना है, सोव, सॉक, सेक, डेमो, रिपब्लिक, ये एक नेमोनिक टाइप का हो गया, बट यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, कौन सा कब आया, कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है। सिमिलरली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एक हायरार्किकल ऑर्डर है दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सेज इज द प्रीएम्बल जस्टिशिएबल, क्या हम प्रीएम्बल को लेकर कोर्ट्स में जा सकते हैं कि नहीं। तो इसमें दो केसेस हैं विच आर प्रोमिनेंट। फर्स्ट इज इन रे बेरुबारी यूनियन केस, 1960s का केस है। उसमें द प्रेसिडेंट टुक अ रेफरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क्ड वेदर द प्रीएम्बल इज जस्टिशिएबल और नॉट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि ऑल्दो द प्रीएम्बल इज अ वेरी रेलिवेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजंस वेग या एम्बिगुअस लगते हैं तो उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट नो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, सॉरी, द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट दिस व्यू वॉज चेंज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 जजमेंट। So in this judgment, amongst other things, with respect to preamble, what the court said is कि the preamble
lays down the aims and aspirations of the people and is a very relevant document, and it invariably forms the part of, not only the part of the constitution, but it also forms part of the basic structure. अब ये basic structure क्या होता है ये हम बाद में जब फंडामेंटल राइट्स या फिर अमेंडमेंट से डील करेंगे तब इस पे मैं elucidating बहुत ज़्यादा elucidate करूंगा. Right now you just need to understand कि the Supreme Court said it forms part of the basic structure of the constitution, and as part of that basic structure it can neither be abrogated nor be removed, and it will always continue to form part of the constitution. Okay, whether the preamble is amendable, yes, the preamble is amendable, but two things have to be remembered. Those provisions of the constitution which constitute the basic structure, they cannot be touched upon. At the same time, other provisions they can be improved upon. अब constitution कितनी बार amend हुआ है? केवल एक बार amend हुआ है. 42nd Amendment Act of 1976. This added 3 words: socialist, secular and integrity to the constitution. और ये जो amendments हैं ये हमको क्लियरली अपने दिमाग में याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमसे सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि यू नो इट टॉक्स अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिफोर दिस अमेंडमेंट केम इनटू पिक्चर. ओके, so the keywords that we have to memorize here is the 5 adjectives: sovereign, socialist, secular, democratic republic, and the 4 goals: justice, liberty, equality and fraternity. Okay, and इसको हम लोग को हम चाहेंगे तो अपने रियल लाइफ एग्जांपल से भी यूज कर सकते हैं. गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनसे भी इसको हम कनेक्ट करके देख सकते हैं. यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ एग्जांपल्स वेयर इन द गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्कीम और ब्रिंगिंग आउट अ पर्टिकुलर आइडिया फॉर द विद द एम टू progress or achieve these objectives or goals laid down in the preamble. ठीक है, और एट द सेम टाइम ये आपको केशवानंद भारती जजमेंट, बेरोबारी जजमेंट और 42nd अमेंडमेंट, ये 3 आपको पक्का से याद रखने हैं अपने दिमाग में, बिकॉज दे आर वेरी रेलिवेंट. ओके, सो वी विल टेक अ कपल ऑफ PYQs बिफोर वी रैप अप. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे. कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिस्पेक्ट में इनको पूछा है. 2023 का क्वेश्चन है ये. स्टेटमेंट 1: कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग इट्स सिटीजंस. ओके. स्टेटमेंट 2: 26 नवंबर 1949. आपको याद है मैंने बोला था ये बहुत रेलिवेंट डेट है. 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब इसमें इन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर दोनों सही है, क्या है. सो लेट्स सी. कॉन्स्टिट्यूशन डे इनवेरिएबली इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर. ये फैक्ट बिल्कुल सही है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बट द सेकंड स्टेटमेंट कि 26 नवंबर को हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. 26 नवंबर 1949 is the day on which the constitution came into existence. The day it came into being. It is not the day when the drafting committee was set up. Drafting committee was set up somewhere in the August 1947. So eventually what we see, option C, statement 1 is correct, statement 2 is not correct. Okay. Another question: what was the exact constitutional status of India on 26 January 1952? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. याद है मैंने आपको नेमोनिक की बात की थी, सोक सेक डेमो रिपब्लिक. वो नेमोनिक यहां अप्लाई हो रहा है, पर पूरा अप्लाई हो रहा है कि नहीं. सी द अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, it added the word socialist and secular to the Indian constitution. So basically we are talking about 26 January 1950 which is before 1976. तो उस डेट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या रीड करता होगा? सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो कभी हेस्टिली ऑप्शन डी मत मार दीजिएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. Then the last question: the mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? ये simple question है, clear answer है preamble. As I told you when I was introducing the Constitution, it is a key to the mind of the makers of the Constitution, an introduction to the Constitution or the ID card of the Constitution. Okay, so the topic that we are going to take next is the historical developments of the Indian Constitution, or as we call it, the historical underpinnings of the Indian Constitution. Now, this topic is essential for understanding because it deals with a lot of concepts, ideas and developments that have resulted in our present day constitutional and democratic setup. Okay, the timeline laid down under this topic of historical development, it traces India's constitutional journey from the days of company rule under the East India Company through the crown rule and run all the way up to the Constituent Assembly of India, which drafted the Constitution of India, of course. Okay,
For UPSC prelims, this topic is incredibly important. There are a large number of questions that come from this topic, and mostly they deal with the provisions of the various enactments that we study under this topic. All right. So, one thing that often pops up is why study historical background? See, many features of our constitution, as I said before, like emergency provisions of the Constitution of India, federal structure, public service commission, the higher judiciaries in the form of Supreme Court and High Court, they all are the legacy of the British rule. So in order to understand that completely, we have to even look at their historical perspective, and that is where these historical developments come into picture. Okay, let's take a quick overview of the company rule. See, this whole topic is divided into two areas. One is the company rule, the other one is the crown rule. Okay, so when we talk about the company rule, we need to understand a few rudimentary things first. First is East India Company. Okay, this East India Company was established in 1600, 31st December 1600, as we know it, and under charter given by Queen Elizabeth, it was established. So this charter which established East India Company, it laid down a few things. First, it gave it a trade monopoly to trade with entire world except यूरोप. ओके, पूरे यूरोप को छोड़ दें तो बाकी पूरा एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब में ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को. दूसरी चीज, नो अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट वाज अलाउड टू ट्रेड इन दोज टेरिटरीज फॉर विच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन द मोनोपोली विदाउट अ प्रायर लाइसेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको एक दो चीज पता होनी चाहिए कि सो द पीपल हु आर द स्टॉक होल्डर्स इन दिस कंपनी और द शेयर होल्डर्स इन दिस कंपनी, दे वर टुगेदर कॉल्ड एज कोर्ट और द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. अब every year or annually this court of proprietors used to meet, and this meeting in this meeting it elected a governing body. ठीक है ना, a governor and 24 directors were elected by the shareholders, and this governing body was called as the court of directors. This phrase is relevant because कभी ये पूछ भी सकते हैं आपको, और more importantly हम जब ये enactments पढ़ते हैं तो बहुत जगह phrase court of directors use किया हुआ होता है. ठीक है ना. So this company, rather East India Company as we say it composed of court of proprietors and court of directors. Fine. And the entire functioning of this company, or rather the rule by this East India Company, was regulated by the British Parliament through successive acts. Now let's come to the first important legislation, that is the Regulating Act of 1773. ठीक है, it is officially called as the East India Company Act of 1773, and it had three main objectives. One was reforming the company constitution, second was reforming the company's government in India, and third was providing remedies against misdoings of the company servants. अब इस टाइम पे हो क्या रहा था, शॉर्ट में समझिएगा कि कंपनी के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे या फिर एम्प्लॉइज थे, वो अपना एक प्राइवेट ट्रेड करे हुए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट दे वर नॉट अलाउड टू डू सो. वो कर रहे थे, तो उसमें वो करते क्या थे, कंपनी की पावर्स, कंपनी की अथॉरिटीज, कंपनी की सर्विसेज को मिसयूज करते थे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए. सो बेसिकली कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही थी, और वो जो ऑफिसर्स थे दे वर लिविंग अ लैविश लाइफ. ठीक है ना, तो वो हो गया. उसके अलावा क्या कहते हैं, देयर वाज अ रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनी इटसेल्फ. तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इनको सबड्यू करने के लिए दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज ब्रॉट, एंड दिस रिजल्टेड इन some major changes in the administration and governance of the company. अब इसके major provisions क्या थे, let's look at that. First is Governor General and Executive Council. Okay, so the act provided for establishment of Governor General of Bengal. जो पहले तीन प्रेसिडेंसीज होती थी, कैलकट्टा, बंगाल और मद्रास, उनके गवर्नर्स को गवर्नर कहा जाता सिंपल, बट दिस एक्ट रीडेजिग्नेटेड द नेम ऑफ गवर्नर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है ना. और जो फर्स्ट ऑक्यूपेंट था इस पोजीशन का, हिज नेम वाज वॉरेन हेस्टिंग्स. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए. Then besides Governor General of Bengal, a 4-member executive council was also formed. इस executive council का काम क्या था, to assist the Governor General in his day-to-day activities or in his act of running the administration of the company. ठीक है. Now the entire civil and military government of the company was brought under the hands of Governor General of Bengal. Okay. Then
Next, we see subjugation of Madras and Bombay presidencies. So, as I've told you before, Calcutta, Bombay, and Madras were the three presidencies. Initially, they were equally placed, but after this act, the presidencies of Bombay and Madras were brought under the supervision and superintendence of the Governor General of Bengal. Okay, his prior consent was made compulsory before these two presidencies entered into any treaty, or they entered into any war, or they entered into any agreement with any princely states and so on. तो उसको एक सुपरविजनरी पावर दे दी गई थी इन दोनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर. ओके, देन द थर्ड इज ग्रांटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू गवर्नर जनरल एंड काउंसिल. What does this mean is the Governor General and Council, they could make rules, regulations, ordinances, etc. for the territory that was under its control. Okay, तो प्रेसिडेंसीज जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी उनके रिस्पेक्ट पे भी इनको पावर टू लेजिस्लेट दिया गया था. देन अनदर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, Supreme Court was established under the aegis of Act of 1773, and Sir Elijah Impey was its first Chief Justice. Okay, it consisted of a Chief Justice and 3 peon judges, and this Supreme Court was supposed to act as the court of last resort with respect to Bengal. And eventually we see in the later enactments, there was a growing discord between this Supreme Court as well as the Governor General and his council, which led to certain other enactments getting passed. Okay, then we have restrictions on the presence and private trades. Okay, इसमें क्या है कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, मैंने आपको पहले बताया कि दे वर इन्वॉल्व इनटू करप्शन और दे वर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. सो थ्रू दिस एक्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन the servants. They were prohibited from taking any sort of presents from the natives, or they were prohibited from involvement into any sort of private trade. इसका पर्पस क्या था कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना था, एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट द सर्विसेज, द पावर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट मिसयूज्ड बाय द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर पर्सनल गेन्स. ओके, नेक्स्ट इन लाइन वी हैव two short acts, Charter Act of 1781 and the Pitt India Act of 1784. अब ये जो Charter Act of 1781 था, this was also called as Act of Settlement. ये primarily enact किया गया था to rectify the drawback of 1773 Act. देखिए, अब अभी आपको मैंने बताया, तो 1773 एक्ट में जब हमने सुप्रीम कोर्ट बनाई थी, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी पावर्स वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं थी. तो उसके चलते देयर वाज अ डिस्कॉर्ड बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट. अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए the Act of Settlement of 1781 was brought into picture. This act clearly demarcated the jurisdiction between East India Company as well as the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होगा, किस किस के ऊपर उसकी पावर लागू होगी, गवर्नर जनरल एंड इस काउंसिल जो है उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ये क्लियरली डिमार्केट किया गया. सिमिलरली जो रेवेन्यू मैटर्स थे, उन रेवेन्यू मैटर्स को पूरा गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंडर सब्जुगेट कर दिया गया ताकि अगेन कोई डिस्कॉर्ड ना हो. एंड सिमिलरली देयर वर अदर प्रोविजंस व्हिच आर ब्रॉट थ्रू दिस एक्ट, और पर्पस सिर्फ यही था कि दे वांटेड टू एंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ओके, देन नेक्स्ट वी सी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. छोटा सा एक्ट था, बट इसकी थोड़ी सी एक हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस है कि इट डिवाइडेड द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. जो कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे, इन दोनों को सेग्रीगेट किया गया. while the commercial functions were retained under the company rule, for political and military functions एक नई body बनाई गई which was called the Board of Control. It used to deal with political affairs, military affairs and so on. ठीक है. Then with the establishment of this Board of Control, we come across establishment of a dual rule. अब हो क्या रहा है, जो commercial functions हैं उसको तो जो court of directors थी वो body control करती थी, ठीक है ना. जहां पे बात आती है मिलिट्री अफेयर्स की या पॉलिटिकल अफेयर्स की, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया है. तो हम देख रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही कंपनी के अंदर दो बॉडीज काम कर रही हैं, दो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है. देन द अथॉरिटी ऑफ द क्राउन वी सी इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, ठीक है ना. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इट वाज अंडर द क्राउन्स अथॉरिटी. सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वी सी एन इंक्रीज इन द अथॉरिटी ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, इसके मेजर प्रोविजंस क्या थे.
सबसे पहला तो ये था कि ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश किया। जब कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में, तब से लेकर 1813 तक कंपनी हैड अ ट्रेड मोनोपोली। इट वाज द ओनली एक्सक्लूसिव एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू वर्क इन एशिया, अफ्रीका एंड सो ऑन। बट यहाँ पे 1813 के चार्टर में हम देखते हैं कि जो ट्रेड मोनोपोली है, दिस हैज बीन अबॉलिश्ड एंड द ट्रेड हैज बीन थ्रोन ओपन फॉर अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, हालांकि इसमें एक कंडीशन लगाई थी कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये दो चीज जो है, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इन दोनों एस्पेक्ट में कंपनी की मोनोपोली को अभी भी रिटेन किया हुआ था। बट बाकी सब जो एरियाज थे उसमें गेम को पूरा ओपन कर दिया था, कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट आके उसमें ट्रेड कर सकता है। ठीक है, देन देयर वाज अ क्लियर असर्शन ऑफ द ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर द इंडियन टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर ब्रिटिश सोवरेनिटी को पूरी तरह से क्लियरली असर्ट कर दिया गया था। ठीक है, देन वी सी इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अलाउ किया गया कि इंडिया में आके वो मिशनरी एक्टिविटीज करें, चैरिटेबल एक्टिविटीज करें। बेसिकली दे वर काइंड ऑफ परमिटेड टू प्रमोट द एक्टिविटीज ऑफ चर्च इन इंडिया। And then we see spread of Western education. A dedicated amount of almost 1 lakh was reserved for the promotion of Western education, in particular the English language under this charter. Okay. So next we have the Charter Act of 1833. ठीक है ना, अब यहाँ पे द फर्स्ट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज, जैसे 1773 में द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. Now we see a further decentralization. Governor General of Bengal was made Governor General of entire India. पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया उसको. एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ही वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ दैट पोस्ट. वहां पे 1773 में हम देखते हैं अपने वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. यहाँ पे विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट. ओके, एंड the act vested in him all civil as well as military powers with respect to government of India, British India, the territories which were under the control of the company. ठीक है. Then another important feature is that this act ended company's commercial activities completely. कंपनी जो थी इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की फॉर्म में रख लिया गया था. उसकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी वो पूरी की पूरी तरह से अबॉलिश कर दी गई थी. ठीक है. देन वी सी द गवर्नर जनरल, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. बेसिकली द governor general was given exclusive legislative powers as well, and that too for the entirety of the country. ठीक है. The governments of or rather the presidencies of Madras and Bombay, they were completely deprived of all sort of legislative powers. ठीक है. And finally this act was the first attempt at codification of Indian laws. ये बहुत relevant point है जो बहुत possible है पूछा जा सकता है. ठीक है ना भाई. जो 1833 एक्ट था, इसके रिजल्ट में इसके अंदर प्रोविजन था फॉर कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले वाज फॉर्म्ड, व्हिच कोडिफाइड अमंग्स अदर थिंग्स द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया. अभी हाल फिलहाल में हमारे लॉज के चेंज होने तक जो हम इंडियन पीनल कोड वगैरह पढ़ते थे, ये सारी की सारी जो है ये ब्रिटिश लेगेसी है. एंड दिस इंडियन पीनल कोड वाज फॉर्म्ड बाय दैट फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैक्यूले. ओके. Now next we have is Charter Act of 1853. Now Charter Act of 1853 की major provisions क्या हैं? First is this act introduced open competition for recruitment of Indian civil servants. ठीक है ना. Indian civil services जो थी वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई थी. अब ओपन कंपटीशन था, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना था. अगर इंडियन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, एंड इफ दे कैन गेट थ्रू दे आर मोर देन वेलकम. ठीक है. फर्दर it separated the legislative as well as executive functions of the governor general's council. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे और उसके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, इन दोनों को आपने अलग अलग कर दिया है. ठीक है ना. और इन्होंने करा कैसे कि भाई इन्होंने कुछ लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड करे काउंसिल में, एंड 6 एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स इन्होंने ऐड करे, एंड दैट ग्रुप वाज कॉल्ड एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ये जो ग्रुप था, this used to formulate or rather do the legislative work, और बाकी members थे, they used to do the work of executive council. ठीक है. Then finally when this charter, while it again extended the company rule. देखिए अभी पीछे तक क्या हो रहा है,
हर बार जब चार्टर आ रहा है तो उसमें कंपनी की एक टेन्योर दी जा रही है कि द कंपनी रूल इज एक्सटेंडेड फॉर दिस मेनी ईयर्स, नॉर्मली 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए वो एक्सटेंड होता था। बट ये चार्टर पहली बार बोलता है कि हम कंपनी रूल को एक्सटेंड तो कर रहे हैं बट उसकी हम ड्यूरेशन नहीं दे रहे कब तक। So basically it gives an inference that it was already there in the mind of the British Crown कि भाई अब कंपनी रूल को हम कभी भी एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ ही लिया था कि कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को आपने खत्म कर दिया है, तो इट वाज एनीवेज फंक्शनिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सो नाउ इट वाज सेइंग कि भाई वी आर एक्सटेंडिंग द कंपनी रूल बट वी आर नॉट in any way laying down how long is this company rule going to last। ठीक है, okay, so now we do a quick summary which with respect to all the developments that have taken place under the company rule। See, it began with the regulation of the company affairs 1773 के एक्ट में हम देखते हैं, एंड इवेंचुअली इट एंडेड विद अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। आपने जो कंपनी है उसको एक मेरे एंटिटी बना के छोड़ दिया है, उसके कॉमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री सारे फंक्शंस आपने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। सो जो अलग अलग इनैक्टमेंट्स हैं इनके थ्रू हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप और एक ग्रेजुअल सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, धीरे धीरे उसकी पावर है उनका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना, then these enactments that have been laid down under the company rule, they have laid down the administrative and legal foundation of modern governance। हमारे बहुत सारे present day modern governance के aspects इस company rule में से कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, then finally we see जो commercial role of company है that is getting declined through these enactments, and administrative as well as political role of company जो है वो develop हो रहा है। ठीक है, okay, now let's switch to developments under the crown rule। ठीक है ना, the first act that we have to study here is Government of India Act of 1858 or also called as an Act for Good Government of India। अब हमको याद होगा कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसके रिजल्ट में हम ये जो ब्रिटिश क्राउन है ये एक्ट लेकर आ रहा है। ठीक है ना, now इसके प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट इज इट ऑफिशियली एंडेड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, and hereinafter the territories which were under the control of East India Company, they were to be ruled and governed under the name of Her Majesty's or His Majesty's government। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रिटिश क्राउन के रूल से रिप्लेस करा है कंपनी रूल को। ठीक है, देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो पुराने एनैक्टमेंट्स में हमने एस्टैब्लिश किया था, दे ऑल गॉट डिलीटेड। अब जो सीधा जो पावर्स थी दे गॉट टोटली ट्रांसफर टू द क्राउन। ठीक है, इनफैक्ट इसमें जो गवर्नर जनरल था, जिसको हम पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे, उसकी डेजिग्नेशन चेंज करके हमने वॉइस रॉय कर दी। अब ये वॉइस रॉय बनाने का पीछे का लॉजिक क्या है? इट वॉज टू शो दैट ही एक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ठीक है ना, देन अनदर ऑफिस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये एक ऑफिस हमने जो एक्ट है इसने एस्टैब्लिश करा। दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज टू बी अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑफिस essentially implied in improvement as well as involvement of the British Parliament into the affairs of India। Okay, then apart from office of secretary of state, another office, it was called the Council of India। This was also established। This Council of India was a 15-member council which was primarily supposed to assist the Secretary of State in his day-to-day activities। Okay, तो ये दो नए ऑफिसेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं। फिर क्योंकि ये जो रूल है ये अब कंपनी से क्राउन को ट्रांसफर हो चुका है, सो दिस इनैक्टमेंट ऑल्सो मार्क द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, bringing them under the rule of the crown। Okay, then finally this enactment marks the beginning of direct British rule। अभी हम पहले जो 1857 से पहले तक तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। ये ब्रिटेन से रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस कुछ अपने पास करेगी, एंड इट वुड पास दोज एनैक्टमेंट्स, एंड द कंपनी वाज टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद दोज एनैक्टमेंट्स। बट अब यहाँ से क्या हो रहा है? इट इज टेकिंग द चार्ज इन इट्स ओन हैंड। ये कह रही है हम खुद डिसाइड करेंगे यहाँ से इंडिया को कैसे गवर्न करना है, हमारी टेरिटरीज के साथ हमको कैसे क्या और क्या क्या रोल प्ले करना है। ओके,
Okay, so next we have is Indian Council Act of 1861. अब this act initiated the process of centralization. यहाँ से हम देखते हैं, oh sorry, decentralization. अभी जो क्राउन रूल था उसमें हम धीरे धीरे देख रहे थे जो गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन है वो अपने वेरियस एनैक्टमेंट्स के थ्रू जो पावर है उसको सेंट्रलाइज कर रही है. 1857 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद से 1861 से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन है पावर को धीरे 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 डिसेंट्रलाइज करता चला जाता है. ठीक है ना. सो दिस एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स बैक टू लेजिस्लेचर्स ऑफ बॉम्बे एज वेल एज मद्रास. Residencies of Bombay and Madras. In fact, it also introduced, legislative councils in new presidencies. जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी हो गई, आपकी पंजाब की प्रेसिडेंसी हो गई, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की प्रेसिडेंसी हो गई. इन सब प्रेसिडेंसीज में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश करी गई, विच इज शोइंग दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन गोइंग ऑन. आप प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दे रहे हैं टू लेजिस्लेट. ओके. Then it also marks the beginning of association of Indians with the law making process. अब इसमें हो क्या रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना शुरू होता है. ये धीरे धीरे हम आगे के एक्ट्स में भी देखेंगे, धीरे धीरे और बढ़ता जाता है. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं एक तो उनकी हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसमें हम इंडियन पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं. सो इन द बिगिनिंग in this Indian Councils Act, there was Indian representation in these legislative councils. They were involved in the form of non-officials. They were not officially appointed. They were appointed in the form of non-officials. But nevertheless, they were becoming part of the legislative process, and thereby we see, Indian involvement getting there. Fine. Then we see decentralized legislative functions. भाई जैसे अभी आपको पहले बताया कि आपने जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनको लेजिस्लेटिव फंक्शंस दिए हैं, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश करी हैं. दिस ऑल लेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस. जो पहले सेंटर के पास सब पावर थी, एक अथॉरिटी पे थी, वो पावर अब कई सारी प्रोविंशियल अथॉरिटीज में धीरे धीरे डेलीगेट करी जा रही है. ओके. देन वी हैव इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892. ओके. सो इन दिस एक्ट वी अगेन सी अ फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन. हो क्या रहा है, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाया जा रहा है. सेंट्रल लेवल पे जो इनकी स्ट्रेंथ थी दैट यूज्ड टू बी 16 बिफोर दिस एक्ट, नाउ इट वाज टर्न टू 60. प्रोविंशियल लेवल पे भी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग लेवल वो नंबर रह रहा था इनका. ठीक है. मोरओवर दिस एक्ट गिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अ पावर टू डिस्कस द बजट. बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी है. देखिए वो वोट नहीं कर सक रही हैं बट वो बजट को डिस्कस कर सक रही हैं. वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि व्हेन दे गेट टू डिस्कस द बजट वी कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस, किन किन हेड्स में हमारे बजट में पैसा यूज हो रहा है. सिमिलरली दे वर गिवन द पावर टू आस्क क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इनवेरिएबली जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो गवर्नमेंट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है दे आर बाउंड टू कम अंडर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. ठीक है ना. सो together this was going to improve the administration of India as a whole. Okay. Then next we have is Indian Councils Act of 1909. Now again we see increasing the size of legislative council like it was happening before. Similarly a new development that we see is at provincial legislative level नॉन ऑफिशियल जो है इनको मेजोरिटी दी जा रही है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेवल पे. सेंटर में अभी भी ऑफिशियल्स की मेजोरिटी है बट प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी हो जा रही है. देन वी सी जो काउंसिल्स हैं दे आर नाउ अलाउड टू आस्क इवन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. पहले क्या हो रहा था, आप एक रिटन क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, यू आर नॉट सपोज टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक. आपका काम क्वेश्चन दिया और खत्म हो गया. ठीक है. यहां पे है यू कैन आस्क इवन फर्दर क्वेश्चंस. आपको लग रहा है आंसर प्रॉपर नहीं है, आपको एक और इलैबोरेट आंसर चाहिए, आप वो पूछ सकते हैं. ठीक है ना. फिर अनदर डेवलपमेंट दैट वी सी इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. देखिए अभी तक हो क्या रहा है, जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसमें तो इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बट जो गवर्नर जनरल की या फिर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. बट यहां पर क्या किया गया, दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इट वाज सेड दैट दे वुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इनटू दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल. सो अब इसमें था क्या, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन दैट वॉज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है ना. सो नाउ वी सी इंक्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडियंस आउट हेयर.
ठीक है। देन दिस 1909 का एक मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था मार्क्ड राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ओके, इसके जो प्रोविजंस थे उसमें व्हाट वाज सेड दैट देयर वाज अ प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टरेट्स बेस्ड ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। ठीक है, जो प्रोविजन एसेंशियली बोलता क्या था कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को उस रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स ही इलेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस के टाइम। अब इससे हो क्या रहा था कि भाई एक रिलीजियस कम्युनिटी है, उसके मेंबर्स ही उस कम्युनिटी की सीट्स में वोट कर सकते हैं। तो दिस एसेंशियली रिजल्टेड इन व्हाट वी कॉल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इंक्रीज इन डिविजिव पॉलिटिक्स, इंक्रीज इन डाइसेंशन अमंग वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स, और इवेंचुअली जो हम बाद में देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन, उसके सीट्स कहीं ना कहीं यहां से जर्मिनेट होकर आगे आ रहे हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट वाज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट डिमांड। 1885 में कांग्रेस बन गई है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। सो जो नेशनलिस्ट डिमांड्स हैं फॉर इन्वॉल्वमेंट, मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इनटू द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस सेटअप, उसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, मेजर प्रोविजंस क्या है इसके। फर्स्ट देखिए, देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। ठीक है, अब यहां पे ओके, पहला तो हमको ये समझना है कि ओके, लेट्स पिक अप दिस डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स फर्स्ट। सी दिस एक्ट bifurcated all the subjects, all the hitherto subjects between center and the provinces। जितने भी सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे या गवर्नेंस थे उनको आपने सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में बाइफरकेट किया सबसे पहले तो। ठीक है, देन व्हाट इट डिड इज इंट्रोड्यूस डायरकी। डायरकी मैंने पहले बताया था डबल रूल। ठीक है ना, इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। इसके अंदर व्हाट हैपेंड इज द सब्जेक्ट्स व्हिच आर अलॉटेड टू प्रोविंसेस दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे दे वर टू बी रूल्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द गवर्नर। ओके, गवर्नर जो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ उन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में डिसीजंस लेता था। एंड एज फार एज रिजर्व सब्जेक्ट्स वर कंसर्न, दीज सब्जेक्ट्स वर टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहां पे हम देखते हैं दो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज साथ साथ में काम कर रही हैं। एक तरफ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर के साथ काम कर रही है, और एट द सेम टाइम एक आपके गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। ठीक है, देन 1919 एक्ट के एक प्रोविजन में हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। सो अमंग्स अदर थिंग्स दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट एक ली कमीशन करके कमीशन सेटअप किया गया, और उस कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, दिस कमीशन वाज सेटअप ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज, और इस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे एक 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में सेटअप किया गया। दिस एसेंशियली इज द सेम पब्लिक सर्विस कमीशन विच गेट्स whose role gets transferred to our present day UPSC. So this particular point is very relevant for prelims perspective for us. Okay, डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट डिमांड ये मैंने आपको शुरू में कवर कर ही लिया है। सो लेट्स गो अहेड। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत मेजर एनैक्टमेंट है फॉर द पर्पसेज ऑफ आवर एग्जाम। यूजुअली इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट which actually never even came into force, it was establishment of an all India federation। देखिए, अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं 1919 के एक्ट के लिए। जो 1919 का एक्ट था उसने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एसोसिएट करने का अटेम्प्ट किया था बाय एस्टैब्लिशिंग अ बॉडी कॉल्ड नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919 एक्ट के अंडर में बनाया गया था। उसी आइडिया को और एनलार्ज किया गया, एंड द गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट्स विद द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस। वो चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सो विद दैट आइडिया इन द माइंड इट प्रपोज एन ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इसमें इन्होंने करा क्या कि देयर वाज एन ऑल इंडिया फेडरेशन दैट वाज मेड, एंड दिस ऑल इंडिया फेडरेशन वाज सपोज टू कंपोज ऑफ both the British provinces,
then chief commissioner provinces as well as the princely states. ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट डिड दे डू इज, जितने भी सब्जेक्ट्स थे इनको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, द फेडरल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। 3 लिस्ट इन्होंने ड्राफ्ट करी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, ये हाउएवर जो प्रोविजन था ऑल इंडिया फेडरेशन का, ये प्रोविजन आया नहीं फंक्शनिंग में। और एक चीज़ और है कि जो हमने डिवीजन किया 3 लिस्ट में, इसके अलावा कोई फंक्शंस हो गए जैसे रेजिड्यूरी फंक्शन जिनको हम बोलते हैं, वो रेजिड्यूरी फंक्शंस उनके रिस्पेक्ट में जो पावर थी दैट वाज केप्ट विद द वायसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, देन another feature we see is that this act replaced the diarchy in provinces. पुराने एक्ट में हमने देखा था कि डायरकी वाज और डबल रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस। नाउ अंडर दिस एक्ट दैट डबल रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट वाज रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज टू बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, एंड दैट elected council of ministers was to run the helm of affairs, and the governor of every province was to work on the aid and advice of that council of ministers. ठीक है, हमने कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रही थी, जो जितने भी फील्ड्स प्रोविंशियल लिस्ट में हैं उनके रिस्पेक्ट में ये जो प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, वो अपने हिसाब से सारे डिसीजंस ले सकती थी, सेंटर का इंटरफेरेंस एकदम मिनिमल कर दिया गया था। ठीक है, देन अब हमने स्टेट लेवल पे तो डायरकी डबल रूल खत्म कर दिया है, बट एट द सेम टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। मतलब जो सेंट्रल लेवल या फिर फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे उनको हमने दोबारा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड द रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने हिसाब से उनके डिसीजंस लेगी। एज फार एज रिजर्व सब्जेक्ट्स वर कंसर्न, उस पे अगेन ओनली द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वॉइसरॉय दे वर द कंपीटेंट इन persons with respect to making laws or taking decisions on them. ठीक है, then amongst other things this act established Reserve Bank of India. जो हमारा आज का रिजर्व बैंक है उसका प्रीडिसेसर था, जो it has the precursor जो हो गया, it was established by the Government of India Act of 1935. Similarly, this act established a federal court. It made provisions for a federal court. अब ये जो फेडरल कोर्ट है, देखिए सबसे पहले हमने 1773 में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, वहां पे ये जो आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो नहीं थी, इट वॉज मेंट टू बी ए हायर कोर्ट, इट वॉज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाद में अभी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था, एंड नाउ अंडर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 वी सी ए फेडरल कोर्ट गेटिंग एस्टैब्लिश्ड। और ये जो 35 के एक्ट के अंडर में जो हमने फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करी है, असेंशियली यही फेडरल कोर्ट है जो आफ्टर आर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट ये फीचर ऑफ दिस एक्ट है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके जो प्रोविजंस हैं दे फॉर्म अ लॉट ऑफ द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं, जैसे हमारा 3 लिस्ट के बीच का डिवीजन है या फिर फेडरल स्ट्रक्चर है, इस तरह से कई सारे प्रोविजंस हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। ठीक है, देन वी हैव द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो है, इसमें इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज एंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। अब देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसका ये जो एक्ट है, इसको जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी असेंट मिली है 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट मिली है, और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये फोर्स में आया है 15 अगस्त 1947 को। सो दैट इज द रीजन why we celebrate 15th August as Independence Day is this is the day on which the Indian Independence Act came into force and India became an independent nation. ठीक है, अब इंडिया इंडिपेंडेंट कर दिया है, एट द सेम टाइम इन्होंने क्या करा है, इंडिया गॉट बाइफरकेटेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब दोनों कंट्रीज को इन्होंने ब्रिटिश डोमिनियंस बना दिया। इट रिजल्टेड इन इमर्जेंस और मेकिंग अप ऑफ 2 डोमिनियंस, डोमिनियन ऑफ इंडिया एज वेल एज डोमिनियन ऑफ
पाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उसको दे हैव बीन मेड सोवरेन पावर। इसका मतलब क्या है, जो भी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास थी दैट पावर हैज बीन हैंडेड ओवर टू दोस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। उनको बोल दिया यू आर फुल्ली ऑथराइज टू टेक एनी एक्शन दैट यू वांट टू टेक, ठीक है। आप चाहते हैं कोई भी ब्रिटिश क्राउन का पास किया हुआ एक्ट रिपील आप कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रोविजन डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी टू एक्ट इन विच एवर मैनर यू डीम परफेक्ट, ठीक है। देन एट द सेम टाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर ऑल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिंग एज प्रोविजनल पार्लियामेंट। सी अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का रूल खत्म हो गया है 15 अगस्त 1947 को, कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी पार्लियामेंट फॉर्म होगी नई वो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद फॉर्म होगी। उस इंटरमीडिएटरी पीरियड के बीच के लिए कौन पार्लियामेंट का फंक्शन परफॉर्म करेगा, दिस पावर वॉज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये हम इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंक्शनिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ठीक है। एंड देन फाइनली वी सी दैट द इंडिया becomes a fully independent country on 15th August of 1947. Okay, so summary में अगर हम लाएंगे तो from 1858 to 1947 we see full control by the British crown over the affairs of India. Okay, the process started with representation कि इनिशियली हमने देखा है कि जो इंडियंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बन रहा है और इवेंचुअली दिस होल प्रोसेस कल्मिनेटेड इनटू व्हाट, अ कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस बाय पासिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। देन हमारे जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स हैं जैसे फेडरलिज्म हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है, हायर कोर्ट्स हैं, हमारी इमरजेंसी पावर्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं ये इस ब्रिटिश लेगेसी या फिर क्राउन रूल से इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर इस जो ये क्राउन रूल है इसके अंदर जो एनैक्टमेंट्स आ रहे हैं इसको, इसके जो प्रोसीजर हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं, दे इवेंचुअली पेव्ड वे फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन 1946 एंड 1949. ओके, so that is the more or less the gist of this topic. Let's take quickly a few PYQs with respect to this topic. Okay, so in the federation established by the Government of India Act 1935, the residuary powers were given to, जो ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश हुई थी 1935 एक्ट में, उसमें रेजिडरी पावर किसके पास थी? ऑप्शंस आर फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स. नाउ हियर एज वी रिमेंबर वायसरॉय वाज गिवन द रेजिडरी पावर्स, सो इन दीज ऑप्शंस ऑप्शन 2 गवर्नर जनरल और वायसरॉय इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. दिस इज अ स्ट्रेट अप क्वेश्चन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने 3 लिस्ट का डिवीजन करा था, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So I think with that I would wrap up this class. I hope you have understood these basic concepts. जो इसमें मेजर की प्रोविजंस मैंने यूज़ किए हैं, जो इनमें मेजर टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ करी हैं, यू रियली नीड टू मग देम अप. आपको इसकी टाइमलाइन क्रोनोलॉजी एकदम जैसे बताया है वैसे ही याद करनी है और आपको क्लियरली जो मेजर प्रोविजंस हैं इसमें बताए गए हैं क्लास में, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड बिकॉज उनसे सीधा क्वेश्चन आता है बहुत बार. They just put down a provision in the exam and they ask you कि ये किस एक्ट का प्रोविजन है, या फिर वो प्रोविजंस को आपको मैच करने के लिए भी दे सकते हैं कि भाई इसको इस एक्ट के साथ मैच करिए एंड सो ऑन. सो द एंटायरिटी ऑफ दीज प्रोविजंस होल्ड रेलेवेंस. ओके, सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक नाउ इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और rather we're going to club 2 topics, making of the Indian constitution as well as the salient features of the constitution of India, because both of these topics are relatively shorter and they can even be studied simultaneously. Okay, so that's how we are going to go about it. So when it comes to making of the constitution, essentially what it involves is taking a journey into how the constitution of India was drafted. Okay, so there are 3 things which you should always remember with respect to this chapter on making of the Indian Constitution. एक,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इवोल्यूशन कैसे बनी, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या क्या इसकी मेंबरशिप थी, तीसरा फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. These are the three key areas that you need to totally stress upon और focus upon. इस पे एकदम clear focus रहना है. बाकी कुछ इधर उधर आपका छूट भी जाएगा तो भी it's not that highly probable. Okay, and whatever few things apart from this we need to take, I'll be taking them in the class also. Cool. So okay, just what constitutes or just what is a constituent assembly? होती क्या चीज़ है ये? देखिए, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी विच इज़ फॉर्म्ड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अगर आप थोड़े कुछ साल पुराने करंट अफेयर्स से अवेयर हों तो अ फ्यू ईयर्स अगो वी सॉ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ नेपाल गेटिंग कन्वेन्ड टू ड्राफ्ट अ ऑल टुगेदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. और उसमें कई सारे प्रोविजंस थे विच वर not suitable to all the sections of the country, and we were coming across a lot of such news also. Anyways, not going into all that matter, simply stated ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है और इस स्पेशलाइज्ड बॉडी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना. कूल. एज फार एज द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कंसर्न, सी at individual level if we are talking, the idea was first proposed by a gentleman called Mr. M.N. Roy in 1934. And at an organizational level if we say, सबसे पहले Indian National Congress was the organization to ask for a constituent assembly to draft the constitution of India. Okay, now come to 1942, the Cripps mission. The Cripps mission was sent under Sir Stafford Cripps, I'm sorry, and it was sent by the British government with the proposals on framing of an Indian constitution. Okay, however the deal did not materialize. So in 1946, that is when we finally see a cabinet mission being sent, and it was under the schemes of that cabinet mission that the Constituent Assembly of India was constituted. Okay. Now, as regards the composition of this Constituent Assembly, it consisted of 389 members. Okay, let's get it straight. This part is going to be a tad bit factual as well as boring, but it's short, so you'll have to stay with me here. Okay, so as I was saying, it constituted of 389 members. इसमें 389 टोटल मेंबर्स थे जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था. मेंबर्स हु बिलोंग टू द प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. ओके, सो 292 members were to come from the provinces under British India, plus 4 members under Chief Commissioner's province held under the British rule. Okay, and other than that there were 93 members who came from princely states. ठीक है ना. Now the division of the seats, अभी seats कैसे divide हो रही थी इनमें. The division of the seats between these various states and provinces were done on the basis of population. Roughly 1 seat for 1 million of a population was done. And further, जो seats allocated थी ब्रिटिश एरिया में, the seats that were allocated for the provinces under British rule, they were further subdivided into 3 categories. एक था seats for Muslims, then there were seats for Sikhs, and then finally there were seats for others. Okay, अब ये जो categorization था, communal categorization rather, this what it implied was कि as far as these seats are concerned, any member who was elected from these seats, votes for them could only be given by the members belonging to those very communities. Other communities had no right to vote with respect to these seats. Okay, then another thing that you need to remember, which is very pertinent to Constituent Assembly, is that it was composed of members who were elected through the process of इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेशन. देखिए, अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं दे वर नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. एज फार एज द ब्रिटिश रूल टेरिटरीज वर कंसर्न, तो उसके जो मेंबर्स थे दे वर सपोज टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सीधा कॉमन पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं कर रही थी. दे वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड हेंस दे वर
all indirectly elected, or in case of provincials or princely states, they were nominated, right? Then let's talk about the composition of this constitution of this assembly we have done. Now we talk about the composition as well as functioning of this assembly. So the first meeting, as we see, 9th December 1946, 9 December 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है, ठीक है. इन दिस मीटिंग मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज अपॉइंटेड और selected as the pro tem president of the assembly. The temporary president of the assembly सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है. At the same time मिस्टर फ्रैंक एंथनी, उनको अपॉइंट किया जाता है टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है. अब ये जो प्रोटेम प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, इन सब का प्राइमरी काम क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्ट में जब हम बोल रहे हैं, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलाना अपनी. दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम, एंड यूजुअली ही इज सपोज टू बी द सीनियर मोस्ट मेंबर. ओके, सो first meeting on 9 December 1946, pro-tem president has been appointed. Now 2 days later, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि 9 दिसंबर के बाद ये जो हमारी मीटिंग हो रही है, इसमें सब में एक पार्टी है जो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वो है मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग वॉज द ओनली मेजर पार्टी विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इनिशियल डिलिबरेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये जब हमारा पार्टीशन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद जाके बैठना शुरू हुई थी, ठीक है ना. तो दिस इज रेलिवेंट बोथ फॉर हिस्ट्री पर्पज ऑल्सो और एट द सेम टाइम फॉर योर पॉलिटी पर्पज एज वेल. ओके, देन 11 दिसंबर वी कम बैक टू इट. 11 दिसंबर को क्या हो रहा है? द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, Dr. Rajendra Prasad, is elected as the permanent president of the Constituent Assembly. And in the coming days, उसके थोड़े टाइम बाद H.C. मुखर्जी as well as V.T. कृष्णमाचारी, ये दो लोग थे जिनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अलग अलग टाइम पर अपॉइंट किया गया, ठीक है ना. डेट्स आर नॉट सो रेलिवेंट, बट दो लोग थे जिनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया. दैट पार्ट इज रेलिवेंट, ठीक है. फिर इवेंचुअली ऑब्वियसली एज यू कैन सी इन द स्लाइड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, फाइनली जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, एट दैट टाइम इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी, ठीक है. विल कम टू दैट लेटर. बट एक चीज़ याद रखनी है, जब हमारी फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंट, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन में भी चेंज होता है. इनिशियली एज वी सी, इट contained 389 members. After the independence, the strength comes down to 299. 229 members was the strength of Constituent Assembly, जिसमें से 229 जो थे, they came from the British provinces, और 70 members they represented the princely states. बाकी अब जो 100 members बच गए, 90 odd members बच गए, ये जो थे, दे वेंट टू द एरिया दैट वेंट विद पाकिस्तान, ठीक है. ओके, या वन मोर फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर B.N. राव, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द फंक्शनिंग or the functioning which the Constituent Assembly undertook to complete the process of drafting the constitution. Simple facts हैं. 165 sittings, total number of sittings which the Constituent Assembly took. 2 years, 11 months and 18 days is the total amount of time that the Assembly took to start from the scratch and finish the constitutional document, ठीक है. In total it had 11 sessions. And finally, on 26 November 1949, it adopted the document called Indian Constitution. ठीक है, and this constitution obviously came into force on 26 January 1950. However, एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि not all provisions of the constitution they came into force on 26 January 1950. कुछ provisions थे जो पहले force में आ गए. Bulk provisions they came into force on 26 Jan 1950. ओके, अब इसमें ओके, हाँ, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट कंटेन्ड 8 मेजर कमिटीज एंड ऑलमोस्ट 12-13 माइनर कमिटीज. तो अब इसमें इन कमिटीज में आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द
नेम्स ऑफ द कमिटीज एज वेल एज द चेयरमैनशिप कि चेयरमैन कौन था। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, या फिर यूनियन पावर्स कमेटी है इसके श्री जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, फॉर दैट मैटर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है इसके भी जवाहरलाल नेहरू का चेयरमैन थे। इस तरह से जो मेजर कमिटीज हैं इनके नाम और इनके चेयरमैन के नाम यू मस्ट रिमेंबर। देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन दे जस्ट डायरेक्टली आस्क दिस क्वेश्चन कि दे वुड ईदर आस्क यू टू पेयर द कमिटी विद द चेयरमैन और दे वुड जस्ट आस्क यू द नेम ऑफ द कमिटी एंड आस्क हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द सेड कमिटी। सिमिलरली जो हमारी माइनर कमिटीज हो गई वो 13 कमिटीज हैं। अब इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू रिमेंबर देयर नेम्स ऑफ देयर चेयरमैन एज वेल, बट अगर सारे आपको याद ना भी हो पाए तो आई हैव गिवन डाउन द लिस्ट ऑफ few of those committees जो ज़्यादा relevant है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. So you can just look at that PDF and or rather look at the slide and try to remember those names. They will come in really handy in the prelims. Okay. अब ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसके लिए समझते हैं. देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई. अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म कहाँ हुई है, कब हुई है? 29 अगस्त 1947. ये सीधा का सीधा फैक्ट एक क्वेश्चन की फॉर्म में पहले आ भी चुका है. ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई. अब क्या कहते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश इट्स फर्स्ट ड्राफ्ट इन February 1948. इसने 3 ड्राफ्ट पब्लिश करे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. द फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज इन February 1948 and then the second draft was in October 1948 and the third was I think in November 1948. And eventually after the entire process completed, the drafts were published, people were asked to give their views on that. Other political luminaries and other distinguished people were asked for their views and comments. सबसे पूछा गया कि आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, क्या चेंजेस आप चाह रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने उस पर डेलिब्रेट करा प्रोविजन बाय प्रोविजन, एंड इवेंचुअली आफ्टर ऑल दीज डेलिब्रेशंस द फाइनल ड्राफ्ट वाज finally adopted on 26 November 1949 as the Constitution of India. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन के तैयार हो गया था और मेंबर्स ने इस पर साइन कर दिए थे. ओके, ये बन गया है 26 नवंबर 1949 को, बट इट विल कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है, फिर जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि सारे प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को फोर्स में नहीं आ रहे. सम केम राइट एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 26 नवंबर 1949 को ही दे केम इनटू द फोर्स. These include provisions such as citizenship से related जो provisions थे उस टाइम पे we have to remember the context of India Pakistan partition taking place. तो ये जो citizenship related provisions थे बहुत relevant हो गए थे. ठीक है, similarly elections जो हैं, we knew कि once the constitution is formed we would have to conduct elections and all, so they become relevant. Then क्या कहते हैं, provisions related to provisional parliament. As I told before कि under the Indian Independence Act the Constituent Assembly was also supposed to work as the provisional parliament of India. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आ जाता है, the Constituent Assembly itself was supposed to work as provisional parliament, and this required that these provisions related to provisional parliament must start functioning before the coming in force of the constitution. इसी तरह से कुछ और provisions भी थे, right? Okay, one more thing that you need to know, objective resolution. ये टॉपिक थोड़ा सा इसके मतलब छोटे छोटे कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है. 2 दिन बाद श्री राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करते हैं हम प्रेसिडेंट. उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को श्री जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले डाउन करते हैं. अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या कि भाई इट लेड डाउन सर्टेन एम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया विच द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट वाज सॉट टू अचीव. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो आ गया 13 दिसंबर को. इसको अडॉप्ट हमने करा है 22 जनवरी 1947 को. 22 जनवरी 1947 इज द डेट ऑन विच इट गॉट अडॉप्टेड. ठीक है, essentially what it does is it sets down the tone of the philosophy of the constitution, and a lot of the provisions of our present day preamble have been adopted or taken from the instructions or the aspirations given in this objective resolution. ठीक है, so in a way it formed the basis of the present day preamble of the Constitution of India.
ठीक है. सो दैट इज मोर और लेस ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. इसमें जो डेट्स हैं, जो कुछ फिगर्स दिए हुए हैं बिफोर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये छोटे छोटे फिगर्स फैक्ट्स जो हैं ये आपको क्लियरली याद रखने हैं. दे आर वेरी रिलेवेंट. इनसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका. ठीक है. ओके, नाउ विल कट टू द नेक्स्ट टॉपिक, salient features of the constitution of India. I'm sorry. देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, अब ये कोई एक पूरी तरह से इंडिविजुअली मेड डॉक्यूमेंट नहीं है. ठीक है. इट इज द रिजल्ट ऑफ अ लेंदी प्रोसेस, एज वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब उसके साथ साथ देर इज अनदर फैक्ट विच वी नीड टू रिमेंबर, द आइडियाज एंड द प्रोविजंस दैट आर inscribed in our constitutional document. They are developed after overseeing and learning from documents, or rather constitutional documents of various other countries. हमने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस से लर्न किया, पढ़ा, समझा, और उसके बाद उन प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में अडेप्ट करके इम्बाइब किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में. ठीक है. अब दिस हैज रिजल्टेड इन लॉट ऑफ नोवल फीचर्स और यूनिक फीचर्स विच मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट sui generis or one of its kind. Let's try to discuss the key features of the Constitution of India. Okay, सबसे पहले तो lengthiest written constitution in the world. देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो रिटन हो सकता है या तो अनरिटन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, ये रिटन है. Similarly, British Constitution, it is unwritten constitution. It primarily consists of conventions and certain other legislative enactments which have the force of constitution. ठीक है. इंडिया के केस में क्या है? Written constitution obviously. ठीक है. Amongst the written constitution, this is the lengthiest. जब ये constitution बना था, right at that time also it had almost 395 articles and 8 schedules, और अभी तो I think it has probably more than 470 articles or so. ठीक है ना, विच मेक्स इट्स अ रियली बल्की डॉक्यूमेंट. राइट. देन इसका रीज़न क्या है, ये जो इतने सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे देयर इज अ जोग्राफिकल फैक्टर. भाई, इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी और डाइवर्स कंट्री है. सो वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटाज ऑफ सोसाइटी को एग्जिस्टिंग इन आवर पॉलिटी. और हमारे इस पॉलिटिकल सेटअप में जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इनकलकेट ऑल देयर नीड्स, एम्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस विद इन वन डॉक्यूमेंट. हम सबका ध्यान रखना चाहते हैं अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के साथ, तो दैट्स वाई इट एड्स अ बिट टू द प्रोविजंस. ठीक है ना. जैसे आप कोई माइनॉरिटीज रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आपने डाल दिए हैं इसमें, ताकि आप माइनॉरिटीज़ के सारे जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान रख सकें. या फिर किसी और पर्टिकुलर प्रोविजन को आपने डाला है कि सो दैट यू कैन लुक अप विद रिस्पेक्ट टू दैट स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी मोर केयरफुली एंड यू कैन हैंडल देयर नीड्स. ठीक है. देन नेक्स्ट इज इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कॉन्स्टिट्यूशंस यूजुअली रिजिड होते हैं या तो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आप बहुत आराम से अमेंड कर सकते हो या तो बहुत मुश्किल से अमेंड करोगे. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बड़ा यूनिक है. इट इज़ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. अब ऐसा कैसे है? देखिए, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हम एक बहुत सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू भी पास कर सकते हैं एंड इट वुड इन इफेक्ट अमाउंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जैसे यूनियन एंड टेरिटरीज है, हमको किसी स्टेट की एरिया, नेम, बाउंड्री वगैरह ऑल्टर करनी है, तो ऑल वी नीड टू डू इज वी पास एन ऑर्डिनरी लॉ. और जैसे हम कोई ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं, वी हैव टू फॉलो दैट वेरी सेम प्रोसेस एंड द एरिया और बाउंड्री ऑफ दैट स्टेट गेट्स ऑल्टर्ड. तो एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल में उसका जो एरिया दिया हुआ है वो ऑल्टर हो जाएगा, एंड दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट वी आर डूइंग इट वेरी फ्लेक्सिबली. एट द सेम टाइम कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो एक स्पेशल मेजॉरिटी मांगते हैं, जैसे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में वोट करना चाहिए. एंड दिस 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग शुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट more than 50% of total membership of the house.
एट द सेम टाइम कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हो गया, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, या फिर जो भी फील्ड्स या फिर एरिया ऑफ पावर्स हैं विच आर रिजर्व फॉर द स्टेट्स, इस तरह से जो प्रोविजंस हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, देन इट नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल मेजॉरिटी इट ऑल्सो नीड्स अ रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। अब ये बहुत रिजिड हो जाता है। सो ऑल इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैज प्रोवाइडेड फॉर बोथ फ्लेक्सिबल प्रोसेसेस ऑल्सो एंड रिजिड प्रोसेसेस ऑल्सो। बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल ही है, वो आराम से अमेंड किया जा सकता है, बट कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे रिजिडली मॉडिफाई होते हैं। उनको अगर आपको अमेंड करना है या उनमें कोई चेंजेस लाने हैं तो वो प्रोसेस काफ़ी रिजिड रखी है हमने, ठीक है। देन वी से वी हैव अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर एंड विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना। अब ये हम क्या कह रहे हैं इसको अदर वर्ड्स में, जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव अ फेडरल सिस्टम बट विद अ यूनिटरी बायस। अब अगर आपको अपना आर्टिकल 1 याद है तो हम बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम ये नहीं बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गेटिंग फॉर्म्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे एंश्योर्ड that this point gets across very clearly that first India is not any sort of voluntary association of states. ऐसा नहीं है कोई स्टेट आज आ जाएगा कल चला जाएगा. It is a compulsive agreement. Once you have become the part of the nation and the Indian polity, there is no power, no authority left in the hands of those states which become a part of India to secede from it. आप छोड़कर नहीं जा सकते हो. Moreover, another thing it aim to enforce is that the Indian Union is indestructible, but the states as part of it are totally destructible. They have been formed only for the purpose of administrative convenience, और the parliament जब चाहे हमारा जो पॉलिटिकल मैप है या डेमोग्राफिक मैप है इंडिया का उसको चेंज कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है, ठीक है. फिर इसके अलावा एक चीज ये भी है कि despite that clear enunciation of India being a union, there are various features of a federation that have been imbibed in the constitution of India. जैसे we have dual government, हमारे पास गवर्नमेंट एट सेंटर भी है, हमारे पास गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस भी है, ठीक है. देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स बिटवीन दीज टू सेंटर्स, दीज टू स्फेयर्स और दीज टू यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट. सेंटर का क्लियरली डिमार्केटेड एरिया ऑफ वर्क है इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट. सिमिलरली स्टेट्स हैव देयर ओन क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है. देन द थर्ड इज वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अगेन पैरामाउंट फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. देन we have supremacy of constitution. The constitution of India is the supreme. ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना ही जुडिशरी, ना एग्जीक्यूटिव. इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम विच दे ऑल डिराइव देयर अथॉरिटी, ओके. देन वी हैव ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी हमारे फेडरल फीचर्स हैं उनको इम्पैक्ट करने वाले प्रोविजंस तो खासतौर पर रिजिड हैं. और then we have an independent judiciary to interpret the provisions of the constitution as well as to enforce the mandate of the constitution in an impartial and unbiased manner, ठीक है ना. ये सारे फीचर्स जो हैं ये नॉर्मली फेडरेशन में देखे जाते हैं बट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल हैं. एट द सेम टाइम कई सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. जब हम पावर ऑफ सेंटर या पावर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं सो द टिल्ट इज इनवेरिएबली इन फेवर ऑफ द सेंटर. इट हैज मोर अथॉरिटी. देयर आर एरियाज और देयर आर अपॉर्चुनिटीज वेयर इन सेंटर कैन इवन dictate and work in the areas which are otherwise reserved for the state. Emergency के provisions हैं. Emergency के time पे center can take a total control of the state and you can function as if the state never even existed. They just have to act as appendage of the center during the times of emergency. या फिर आप ये कह सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज है. अब ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं जो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स इनको सेलेक्ट तो सेंटर कर रहा है बट दे गेट अपॉइंटेड इन द स्टेट्स एंड दे फंक्शन एज पार्ट ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी. सो टेक्निकली दे रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ सेंटर बट दे वर्क फॉर द स्टेट्स. या फिर आप ये देख लीजिए गवर्नर है. अब अपने गवर्नर का अपॉइंटमेंट है या फिर उसका जो रिमूवल है दिस इज इन द हैंड्स ऑफ सेंटर
but he works with the state government. So इस तरह से there are a lot of features in the Indian Constitution which are unitary in nature. So essentially उन दोनों concepts को जब आप merge करके पढ़ते हैं तो what we see is a quasi federal structure. What does it mean is it is partially federal and partially unitary. Essentially हमारा जो फॉर्म है वो फेडरल है, बट हमारा एक यूनिटरी बायस है, देयर इज अ टिल्ट इन द फेवर ऑफ सेंटर. ठीक है. देन अनदर थिंग इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट इज अडॉप्टेड फॉर अ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, रफली वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने भी अडॉप्ट कर रखा है. अब इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, वी हैव अ ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, वी हैव अ डिजोर और अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन फॉर्म ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट. देन वी हैव अ डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव और द रियल एग्जीक्यूटिव इन फॉर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ठीक है. देन वी हैव अ मेजॉरिटी पार्टी रूल. इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी सीट्स लेके आती है दे गेट टू रूल द नेशन. ठीक है. देन वी हैव collective responsibility. The executive is collectively responsible to the legislature for all their actions as well as inactions. कोई भी वो लॉ ला रहे हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए वो लेजिस्लेचर को उत्तरदायी है. ठीक है. देन एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं दे आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर itself and are normally elected from the legislature, selected from the legislature, I'm sorry. Okay. Then we have डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ पे भी जो हाउस ऑफ द पीपल है दैट गेट डिसॉल्व आफ्टर अ पीरियोडिक इंटरवल, एंड एट द सेम टाइम अपर हाउस इट हैज अ permanency to it. The upper house never gets dissolved and keeps going on and on. Okay. ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किए हुए हैं. बट एट द सेम टाइम एक दो चीज़ हमें समझनी है कि भाई हम पूरी तरह ही ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर मॉडल नहीं है. जैसे ब्रिटेन में किंग इज द टिट्यूलर हेड और द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इज द टिट्यूलर हेड. देन बिकॉज देर इज नो किंग इन द केस ऑफ इंडिया, देर इज ऑल्सो नो हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ टिट्यूलर हेड. हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो रेगुलरली इलेक्ट होते हैं और उनकी जो टेन्योर होती है वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है. ठीक है. देन अगेन व्हेन वी टॉक ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है. जबकि ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं है. ब्रिटेन के केस में द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मोस्ट सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप. इट स्टेज और सिट्स अबव इवन द जुडिशरी, इवन अबव द एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना. ब्रिटेन के बारे में बहुत फेमसली बोला भी जाता है ये चीज कि देर इज नथिंग विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन नॉट डू एक्सेप्ट चेंजिंग अ मैन इनटू वुमेन. सो दैट perhaps emphasizes the supremacy of the British Parliament with respect to us. Okay, then the next is an independent and integrated judiciary. What the Indian Constitution provides for is a single independent judiciary to interpret the Constitution as well as apply the laws of the state. हमने एक सिंगल जुडिशियल सेटअप रखा हुआ है. देखिए, बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, वहाँ पे एक ड्यूअल जुडिशियल सेटअप है. दे हैव अ फेडरल कोर्ट एंड देन दे हैव अ कोर्ट स्ट्रक्चर एट स्टेट लेवल ऑल्सो. ठीक है. और वो जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं और जो स्टेट कोर्ट्स हैं वो यूजुअली स्टेट रिलेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं. हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पे है, देन देयर इज हाई कोर्ट एंड देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. और ये सारी कोर्ट्स एक साथ ही एक सिंगल हायरार्की में काम करती हैं और एक सिंगल बॉडी की तरह से काम करती हैं व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट. ठीक है. Then another feature we have to see is fundamental rights. Fundamental rights क्या है? They are essentially the restrictions which have been laid down on the powers of the state to ensure that the citizens of the nation, they as citizens get to develop to their utmost possible manner. ठीक है. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 to 35 में दिए हुए हैं. ब्रॉडली इनको हम डील करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे आएंगे. बट असेंशियली जो है ये एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए प्राइमरली इन्वॉल्व है. मोर ओवर दे एम टू इंश्योर अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है.
देन देर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जैसे हमने एक सिटीजन्स को राइट्स दिए हैं, एट द सेम टाइम हमने एक ड्यूटीज का कंसेप्ट भी दिया हुआ है टू रिमाइंड द सिटीजन दैट अलॉन्ग विद देयर राइट्स दे ऑल्सो पोजेस सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द नेशन। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये तो जस्टिसिएबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को स्टेट का कोई एक्शन वायलेट कर रहा है, यू कैन गो टू द कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड यू कैन एनफोर्स दोज राइट्स। बट फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर उनके रिस्पेक्ट में कोई इशू अराइज हो रहा है तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। ओके, then another thing is DPSP or the directive principles of state policy, which are mentioned in part 4 of the constitution and are contained in article 36 to 51. अब ये जो है they are essentially in the nature of directives. They are directives which are given to the state and these essentially aim to establish a social and economic democracy in the country. ठीक है, और ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में होते हैं। दे आर सोशल, गांधीयन एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल DPSP और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ब्रॉडली हम इनको करेंगे जब हम वो टॉपिक करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द स्टेट विच दे आर नीड टू अडॉप्ट और टेक केयर ऑफ वाइल मेकिंग द लॉज फॉर द नेशन। ठीक है, अगेन जस्ट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, इवन डायरेक्टर प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल। अगर स्टेट अपने लॉज फॉर्मुलेट करते टाइम इनको इम्बाइब नहीं कर रहा है, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू गेट देम एनफोर्स्ड, राइट। देन वी हैव कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, अब अलग अलग कंट्रीज में सिटीजनशिप को अलग अलग लेके अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज में देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, मतलब every citizen is considered part of nation also and of a particular state also, जैसे यूएस में बहुत कॉमन है। ठीक है, उसमें क्या है कि being a member of the country you get a certain rights and as a member of that state concerned also you get certain rights from that state. ठीक है, इंडिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। the kind of citizenship that we have adopted is a single citizenship। आप इंडिया के सिटीजन होते ही इंडिया के हर स्टेट के at the same time, at that very moment you become a citizen of every state of India. You don't have to apply for acquire any other citizenship apart from the citizenship of India. चाहे आप by birth हो, by naturalization हो, by acquisition हो, किसी भी respect में इंडिया के citizen बन रहे हैं, then the moment you become the citizen, you get every single right that is available to the citizen of India, and that right is available to you in all the corners of the nation. ठीक है, देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज द बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और द लोकसभा एज वेल एज टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, हर सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, irrespective of their caste, creed, their social status, their political affiliations, they get a right to vote and a right to say in choosing the representatives of their legislative assemblies as well as their lower house of the parliament. उनको एक complete freedom है, complete choice है, और एक तरह से they are getting empowered to have a say in the constitutional process of the nation. ठीक है, okay, apart from these major features, let's see the sources of the constitution. देखिए, अलग अलग कंट्री से मैं आपको पहले बता रहा था कि we have viewed the constitution of various other countries और उनके जो मेजर आइडियाज़ हैं उनके बेसिस पे हमने कुछ प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब करा है। देखिए, ये असेंशली एक लिस्ट की फॉर्म में है और इससे बहुत बार ये होता है कि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको इंडिविजुअली ही दे देते हैं कि ओके इस कंट्री से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। सो यू विल हैव टू टेक अ ग्लांस एट दिस लिस्ट एंड यू विल हैव टू ट्राई टू रिमेंबर दीज प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्रीज from which they have been adopted or the countries which have had a major influence in these provisions of our constitution. ठीक है ना? Okay, I'll give the key takeaways of this topic now. See, we'll go back to the constituent assembly वाला part first, कि constituent assembly जो थी वो indirectly elected थी, but एक broad mandate और broad representation रखती थी. It contained people from all fragments and all stratas of society. ठीक है ना? Then it had a large number, a lot of committees that were formed.
It had multiple expert committees which looked after various affairs of the committee, or sorry, of the Constituent Assembly, and handled the framing of the Constitution. Then इसके कुछ ही प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आए थे. बल्क प्रोविजंस जो थे वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए थे. और हमारा जो प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है, इट रिफ्लेक्ट्स बोथ द इंडियन रियलिटीज़, जो इंडियन सेटअप की रियलिटीज़ है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वेल एज जो इंटरनेशनल या फिर दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे हमने जो इंस्पिरेशंस ली हैं उसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करता है. राइट, ओके. सो विद दैट आई वुड क्विकली रैप अप दिस सेशन फॉर नाउ, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.